नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और आज बात करेंगे कांग्रेस के हालात की। लेकिन उसके पहले आज की बड़ी हलचल पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज कई बड़े चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको दिखाते हैं किन बड़े चेहरों ने नामांकन दर्ज किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट से अपना पर्चा भरा है और इससे पहले उन्होंने वहां पर एक रोड शो भी किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से अपना पर्चा भरा है। इससे पहले उन्होंने एक बड़ा रोड शो भी किया और स्कूटर से प्रचार किया। साथ साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण सीट से अपना पर्चा भरा है और इस दौरान पूरा लालू परिवार उनके साथ दिखाई दिया। इसके अलावा दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत ने अपना नामांकन दर्ज किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन बड़े चेहरों की जहां पर आज नामांकन दर्ज किया गया है। राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से, इधर रोहिणी आचार्य सारण से और उसके अलावा महाराष्ट्र में अरविंद सावंत ने भी अपना नामांकन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले उन्होंने रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी से 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था। तो स्मृति ईरानी ने अपना आज नामांकन दायर किया है और इस मौके पर वहां मौजूद थे हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी, जिन्होंने बात की है स्मृति ईरानी से। Today, Smriti Irani has filed a nomination from Amethi and she is joining us. Ma'am, पिछले 1-1.5 महीने से I've been seeing personally that आप लगातार लोगों के बीच में हैं and today you filed your nomination. How do you see the public's response, the people of Amethi? How do you see it? I think I've been very blessed that overwhelmingly, irrespective of how hot it was this morning, and we were right in the middle of the noon heat, people came out in big numbers to give their blessings and their support was expressed, and I'm grateful that also my party leadership, Mr. Nadda, our Prime Minister, Amit Bhai, and the CM UP have given their support to make me the candidate of Amethi. Since NDTV has been around for a few days now, you've seen that just if you look at the last 10 days, I've done around 145 meetings. And BJP has done programs in around 325 places. So the fact that when you organize a program, you go to somebody else's who's a host, somebody else's darwaza, as we say. The fact that 450 different places in Amethi invited us for election campaign is more than a good indication of how robustly our campaign is running, and also an indication of yet again from Amethi, BJP will win and become a part of the Modi family. So, ma'am, what is the, Smriti ji, what is the margin that you are aiming for this time if we talk about? Let the Congress announce its candidate. Yeah, coming to that, there has been a delay no doubt about Congress announcing their candidate. बहुत देर हो गई है and आज कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि हो सकता है अब आ जाए उनका नाम. Do you think it is a strategy? आपको क्या लगता है ये strategy है? I wouldn't know what strategy are they envisaging. My only, I think, focus is on my party and especially the kind of work that we've managed to do under the Prime Minister's guidance and with the help of the Modi government in Amethi. I think that the Congress has clearly its role cut out for itself in Amethi. The Congress leadership is aware that this is a losing seat for them because if they were so confident of their victory, they would have announced a candidate by now. बात हो रही है मैम, there are talks going on that either Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, any of the two किसी का भी नाम हो सकता है. There could be like Rahul Gandhi could also go to Raebareli or Priyanka Gandhi could fight from Raebareli and vice versa. I just want to ask, आप पर्सनली किसको चाहती हैं? Couldn't care less. Whoever comes will be defeated, surely.
because both these entities have been absentee politicians from the area. One has been an MP here, missing for 15 years. I've worked for 5 years, of which 2 years was Corona. And especially when you talk about Corona, people wonder why they were never around to help anybody in Amethi and Raebareli for that matter. People today realize that if not for Prime Minister's benevolence in ensuring that every citizen gets free ration, many people would have faced much difficulty. Secondly, they also understand that if not for Prime Minister Modi, nobody would have ensured that free vaccines are made available to every Indian. So given that Narendra Modi's leadership has helped protect many lives, especially here in Amethi, we've not had a single death due to lack of oxygen. That was the amount of effort that was put in. I don't think I would care who's the Congress candidate. My focus is completely on the amount of work that we have done in the past 5 years. That speaks volumes about नेता अगर सही हो, नियत अगर ठीक हो और नीति अगर स्पष्ट और अच्छी हो तो जनता का बहुत काम हो सकता है। मैम एक चीज़ और, एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त है लो वोटर टर्नआउट, बिकॉज हम लोग 2019 के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बहुत पिछली बार से काफ़ी कम है। सो आपको क्या लगता है इससे प्रॉस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा और क्या आपको लगता है विल वी सी द सिमिलर ट्रेंड? वी नो दैट कांग्रेस का वोटर और सपोर्टर वो कम बाहर निकल रहा है, बट लोकतंत्र की भलाई इसी में है कि हम सब नागरिकों के नाते अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें और वोट करें। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी अपील करते हैं हमेशा कि वोट न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी। तो मैं तो कहूँगी कि आज आपने देखा तपती धूप में 12 बजे लोग 2-3 किलोमीटर एक रैली में उपस्थित हो गए। तो इसीलिए मेरा भी हर घर में यही आग्रह है कि प्लीज़ कम आउट एंड वोट। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी हमसे बात करने के लिए। तो स्मृति ईरानी हमसे बात करते हुए आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अभी सारी की सारी आंखें निगाहें जो हैं कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे यहाँ से उस पर है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। तो स्मृति ईरानी खास बातचीत कर रही थी तनिष पंजाबी के साथ और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके विरोध, उनके विपक्ष में खड़ा है, सामने खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन। एनडीटीवी को पता चला है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा जिस दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो अमेठी नहीं रायबरेली है। रायबरेली से इसके पहले सोनिया गांधी सांसद रहीं, लेकिन इस बार वो राज्यसभा में जा चुकी हैं। असली सवाल फिर ये बचता है कि अमेठी से चुनाव लड़ेगा कौन। ये बात भी सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अभी तक अमेठी सीट से रॉबर्ट वाड्रा अपनी दावेदारी पेश करते रहे, उन्होंने बीच में अपने पोस्टर भी लगवा दिए थे, लेकिन इस पर कांग्रेस अब तक चुप है। अमेठी रायबरेली से कौन खड़ा होगा ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों ही कांग्रेस की पारंपरिक है और पारिवारिक सीटें हैं। तो रायबरेली से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी ने चुनाव जीते हैं। रायबरेली बाद में सोनिया गांधी की सीट रही। अमेठी से संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी संसद में आते रहे। 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता, लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। अब रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वाड्रा के दावे पर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार खामोश है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका के चुनाव न लड़ने की बात है। अमेठी में स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन है ये एक बड़ा सवाल है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। मनोरंजन, तमाम तरह की खबरें, बल्कि आपने ही सुबह हमें बताया कि ये खबर जो है अब आ रही है, आपकी बातचीत हुई है वरिष्ठ नेताओं से, तो क्या होगा स्मृति ईरानी के मुकाबले कोई खड़ा हो रहा है या नहीं? मजबूत उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने तो कह दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, लेकिन क्या तैयारी है कांग्रेस के खेमे में? देखिए, कांग्रेस की खेमे की बात करें तो निश्चित रूप से आपने स्मृति ईरानी को सुना, उन्होंने कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी गांधी आ जाए या कोई भी आ जाए। कांग्रेस की स्थिति ये है कि रायबरेली और अमेठी जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी तो ये सीट पेंडिंग में डाल दी गई थी। पेंडिंग में डालने का मतलब कि ये सीट पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। खड़गे साहब के सूत्रों के हवाले से बात करें तो मेरी जो आज बात हुई उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि अब खड़गे साहब ने जो है वो गांधी परिवार से पूछा है राहुल और प्रियंका से कि आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं और उसी अनुसार हम इन सीटों पर उम्मीदवारों की
के नाम तय करें। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या प्रियंका चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के मैं इतना कह सकता हूँ कि राहुल गांधी का फिलहाल ये मानना है कि तीनों गांधी को जो है संसद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में है, वायनाड से खुद राहुल गांधी हैं, वायनाड और फिर अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे किसी एक जगह से। प्रियंका भी लड़ती हैं तो फिर प्रधानमंत्री का जिस ढंग से गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता है वो शायद कुछ ज़्यादा तेज हो सकता है। तो इसको लेकर के परिवार में ये बात हो रही है कि प्रियंका चुनाव ना लड़े। फिर यदि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती है तो 2 सीट है, तो 2 सीट से तो राहुल गांधी लड़ नहीं सकते, लड़ तो सकते हैं लेकिन वो लड़ेंगे किसी और सीट से, या तो अमेठी से या रायबरेली से। कहा जा रहा है कि रायबरेली जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वे कराया गया था कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी या फिर किसी भी वजह से वो ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। एक वॉर रूम भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। मुंशीगंज जो गेस्ट हाउस है जहाँ से गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है उसको भी रिनोवेट किया गया है। गाड़ियाँ जो है वो दिल्ली से जो है अमेठी और वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस चली गई हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोगों को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन वो जो है कि गले में घंटी कौन बांधेगा इसका सबको इंतजार है। और ये बात जो है गांधी परिवार को तय करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हालांकि मुझे ये भी कहा गया है कि बताया गया है कि यदि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते हैं तो अमेठी से भी एक मजबूत कैंडिडेट दिया जाएगा। ये कौन होगा इसका लेकिन क्या ये तय हो गया कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी नहीं? मनोरंजन, ये तय है या अभी भी इसके ऊपर तमाम तरह के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं? देखिए, गांधी परिवार के अंदर इस बात को लेकर के डिबेट है। राहुल गांधी का ये मानना है कि चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चुन के आ चुकी हैं तो और राहुल गांधी वायनाड और एक और जगह से यहाँ अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सारे लोग जो है लोकसभा या राज्यसभा में ना दिखें, क्योंकि फिर ये परिवारवाद वाला मुद्दा होगा। ये हमें बताया गया कि फैमिली में इस बात को लेकर के डिस्कशन है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी शायद चुनाव ना लड़ें। ऐसी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही हैं। जी, धन्यवाद आपका मनोरंजन इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के खेमे में सस्पेंस बना हुआ है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन होगा कैंडिडेट। हालांकि स्मृति ईरानी जो है वो किसी के भी आने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो कह रही थी कि कोई भी सामने आ जाए। लेकिन कौन रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी से लड़ेगा कौन? मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं? और बीच में रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी चलने लगा था। तो ये सब बातें अभी जो साफ नहीं हुई हैं। इस बीच स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। तो सूरत की सूरत अब इंदौर में दोहराई गई है। ठीक सूरत की तरह ही इंदौर में भी एक उलटफेर देखा जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया है, यानी इंदौर में अब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। वो बीजेपी विधायक रमेश मंडोला के साथ अपना नामांकन वापस लेने पहुंच गए। फॉर्म वापस ले लिया क्या? हाँ ले लिया वापस। नाम वापस ले लिया आपने? तो देखा कितने आश्वस्त थे वो, नाम वापस ले लिया। हाँ, क्यों वापस ले लिया ये नहीं मालूम। मालवा इंदौर क्षेत्र में वोटिंग में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार का बीजेपी में ट्वीट करते हुए स्वागत किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है।
और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि सूरत में भी यही हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद बाकी उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया था और बीजेपी उम्मीदवार बिना चुनाव के जीत गए थे। सवाल है कि क्या सूरत के ही तरह यहां पर भी बाकी उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले लेंगे और फिर निर्विरोध जीत का ऐलान हो जाएगा। दूसरे चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस के इस बिखराव से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन भी कमजोर होता नजर आ रहा है। और आपको हम अब ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ है। कांग्रेस के खेमे में इस तरह की एक अफरा तफरी जो है वो और भी जगहों पर है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में कल ही के दिन कांग्रेस को लोकसभा चुनावों से पहले एक और झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनावों में बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने को लेकर नाराज हैं। जाहिर है कि एक इशारा कन्हैया कुमार की ओर है, जो नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी से तालमेल पर भी दिल्ली कांग्रेस नाराज रही है। अरविंदर सिंह लवली ने आप से कांग्रेस के गठबंधन पर दिल्ली यूनिट की नाराजगी की बात भी अपने इस्तीफे में लिखी है। तो कांग्रेस के इस खेमे में जो बिखराव नजर आ रहा है और जो इंदौर में हुआ, सूरत में हुआ, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर IANS, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस, और शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी। चरण सिंह सापरा, कैंडिडेट्स कांग्रेस के कुछ बचे हुए हैं शर्मा शर्मी में और भरोसा उठ गया है कैंडिडेट्स का भी। आपने सुना अभी शिवराज सिंह चौहान को कहते हुए, क्या हो रहा है? आखिरी नामांकन भर के वापस कर लेते हैं जी। देखिए नगमा जी, ऐसा है जिस तरह से आपने और सारे देश ने देखा कि जो अक्षय बम है उसके साथ में बीजेपी के MLA, यानी जिस तरह से बॉडीगार्ड जाते हैं इस तरह से वो रमेश मेंडोला साथ में गए और उनको गाड़ी में बिठा करके फिर कैलाश विजयवर्गीय जी गाड़ी में आए और इस तरह से जैसे एक किडनैपिंग होता है उस तरह से गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विवेक मर रहा है, यानी लोकतंत्र के अंदर ये ठोक तंत्र का भरोसा शुरू है। हो रहा है कांग्रेस पर। नहीं, जरा भी नहीं। ये मैं आपको खुद बताऊं, मैं इंदौर में ही हूं और मुझे पता है क्या सारी चीजें हुई है। एक 5 दिन पहले अक्षय बम के खिलाफ एक पुराना 17 साल पुराना 307 का एक केस था, उसको निकाला गया और उसके ऊपर 3-4 कलमें और लगाई गई हैं। उसको पिछले 4 दिनों के अंदर इस तरह से प्रेशराइज किया गया है, जिस तरह से पूरा गुंडा राज चलता है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रही है। ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 1 इन्होंने 11 मार्च 2020 को किया था मध्य प्रदेश में, और ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। इसी तरह से चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सारे देश ने देखा है। ये हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जगह ठोक तंत्र आ गया है। शाह और तानाशाह की तानाशाही चल रही है। ये नॉर्थ कोरिया बन रहा है। सूरत में किस तरह से कैंडिडेचर विड्रॉ हुआ या डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके पीछे 8 लोगों का विड्रॉल हुआ। ये तमाम सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है। जी, आपने कहा कि यहाँ पे तानाशाही है, नॉर्थ कोरिया बन रहा है। आपने कहा कि इनके खिलाफ कई मामले खोल दिए गए, इनके ऊपर दबाव बनाया गया, बीजेपी के नेता यहाँ पर इनके साथ आए जैसे बॉडीगार्ड आते हैं, तो दबाव है। ये शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है या डर है? जैसा चरणजीत सापरा कह रहे हैं कि डरा धमकाकर दबाव में कैंडिडेचर वापस करवाया जा रहा है। देखिए नगमा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में तो विश्वास है ही है, लेकिन इससे ज्यादा जो डूबता हुआ जहाज कांग्रेस है वो एक मुख्य कारण है। मैं मानता हूं कि किसी भी डूबते हुए जहाज में कोई भी साथ नहीं रहना चाहेगा, और खास तौर पर जिस जहाज का पायलट राहुल गांधी जी जैसा हो तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से उन्हें उतारा जा रहा है सहारा, मैं मानता हूं कि अगर आप किसी जहाज में हैं और भगवान ना करे उसमें कुछ ऐसा हो जाए, वो डूबने वाला हो, तो आपको सारे की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी तरीके से जान बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, अपनी चीजों को बचाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। लाइफ गार्ड बन रहे हैं या बॉडीगार्ड बन रहे हैं, बीजेपी के नेता साथ नजर आते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं गाड़ी में बैठकर।
नहीं, वो तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर जहाज की बात है तो वहां भी लाइफ गार्ड आवश्यकता है, और अगर यहाँ पर कोई विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी तरफ आना चाहता है, स्वागत है, कौन नहीं चाहेगा। बहुत सारे नेता पूर्व में नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए। पहली बात तो ये कि जिन कांति जी की वो बात कर रहे हैं वो लॉ पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे समाज सेवी परिवार से आते हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहे। ये आज कहते हैं कि उनको डर लग गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा डर लगा जी? उनके ऊपर कौन से केसेस थे? उनके ऊपर कौन सी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अलग है, वो बीजेपी में शामिल हुए, कैंडिडेचर वापस, नामांकन वापस लिया जा रहा है, जैसे कि सूरत इंदौर दोनों जगह पर देखा गया। तो अब यहाँ पर भी ये सवाल उठ रहा है जी। आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोल लेता हूँ। नहीं बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। हम वही सूरत और इंदौर की बात में कर रहे हैं। हाँ, सूरत इंदौर नहीं, और ऐड कर लीजिए। रोहन गुप्ता, जिनको टिकट मिल गया था बावजूद उसके, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं लड़ना। विश्वास नहीं है, लीडरशिप में विश्वास नहीं है, कैंडिडेचर में विश्वास नहीं है, पार्टी में विश्वास नहीं है। प्लीज बीच में नहीं, कैप्टन में विश्वास नहीं है उनको अपने। उनको पता है उनका कैप्टन हारा हुआ व्यक्ति है, उनको पता है वो किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते, उनको पता है कि वहां पर समय बर्बाद करना बेकार है। और आपने जो कहा सिर्फ कैंडिडेटर का विषय नहीं है, मैं तो और बहुत सारे नाम लगा सकता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, जयवीर शेरगिल हो गए, अल्पेश ठाकुर हो गए, अरविंदर सिवलल्ली हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्ण हो गए, किरण कुमार रेड्डी हो गए, प्रणीत कौर हो गए, पूरे कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो फिर कांग्रेस बीजेपी में फर्क जो है वो तो खत्म ही हो गया। मैं मानता हूं, अब वो तो कांग्रेस को देखना है ना, भाजपा हो गई है। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप एक दूसरे को बाद में डिस्टर्ब कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, मैं किसी ठीक है। शिवम, एक मिनट, शिवम त्यागी जी, आपने अपनी बात कही कि किसी को विश्वास नहीं है, जहाज डूब रहा है, इसलिए लोग उतर गए हैं और उनको सहारा देना जो है वो भी ठीक है। और जब किसी को विश्वास ही नहीं रहा तो वो उस पार्टी में क्यों रहे? आपको क्या लगता है संजय जी, जिस तरह का इंदौर और सूरत में हुआ है, और वहां पर हमने जो पहले देखा था सूरत में, वो क्या इंदौर में भी दोहराया जाएगा कि कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया, जिन लोगों ने उनके सामने उनको नाम प्रस्तावित किया था वो लोग लापता हो गए, दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो भी बैठ गए और निर्विरोध चुनाव को जीत जाता है? अब ये सवाल है कि क्या यही लग रहा है कि यहाँ पे भी होने वाला है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो मेरे ख्याल में आज इंदौर में आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, विड्रॉल का, तो शायद सूरत जैसा नहीं हुआ। सूरत में टेक्निकल कारणों से, क्योंकि उनके जो भी सिग्नेचर थे उन्होंने कहा कि हमारा सिग्नेचर नहीं है, वो बाद में वो जो लोग कहा जाता है लापता हो गए, उसका एक कोनोटेशन ये होता है कि कोई उनको लापता कर दिया गया, जैसे आज भी एक सापरा साहब बात कर रहे थे। मुश्किल यह है कि कांग्रेस की एक बड़ी भारी विडंबना है, वो एक शुतुरमुर्ग की कहानी होती है ऑस्ट्रिच की, कि आप सर जब जमीन में घुसा लिया तो लगता है कि वो डिनायल मोड वाली जो स्थिति है कांग्रेस की, उस डिनायल मोड से उनको बाहर निकलना होता है। उनके जो सर्वोपरि नेता संजय सिंह, एक बात इसमें जोड़ दूं, जो चरणजीत सिंह सापरा आरोप लगा रहे थे, वो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर इनके खिलाफ, जैसे ये कैंडिडेट जो थे, इनके खिलाफ भी तमाम तरह के मामले निकाले गए या उन्हें डराया धमकाया गया और उन पर दबाव इतना था कि उन्हें अपने कैंडिडेचर वापस लेना पड़ा, तो ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करें, ये तो सही है, जो बिखराव है, बट ये जो आरोप है कि मजबूरी है वहां पर कैंडिडेट्स इसलिए लास्ट मोमेंट पे अपने, कि वाकई कांग्रेस में विश्वास खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सत्य है कि बहुत सारे जगह कैंडिडेट कांग्रेस को सही नहीं मिल रहा है। मैं एक व्यक्ति को विशेष रूप से जानता हूं, नाम अभी नहीं ले रहा हूं, जो कांग्रेस के इस समय उम्मीदवार हैं। उनको एक दिन पहले कहा था वैसे ही कि आप चुनाव लड़िए, और वो बिल्कुल चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। उनका नाम अगले दिन देखा कि कांग्रेस की लिस्ट में सडनली आ गया। तो इस तरह के लोग अगर चुनाव के मैदान में जाएंगे, जो सचमुच चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो वो समस्या होगी। दूसरी चीज ये है कि जो विश्वास की बात, मान लीजिए कि राहुल जी, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कोई किडनैप करके ले जाता है, कोई केस से डरा देता है, तो राहुल गांधी की जो बात है उनके पार्टी के लोगों तक नहीं पहुंच रही है, डरो मत, या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राहुल जी को रिपीट करके कहते हैं डरो मत, वो बात उनके लोगों तक नहीं पहुंच रही। तब तो एक बड़ा भारी विश्वास का संकट कांग्रेस जनों और उनके बीच में। अरविंदर सिंह लवली जो चीज कह रहे हैं वो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लीडरशिप के प्रति एक अविश्वास का जो भाव है, वो महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। इस तरह की जब चीजें होती हैं, जब वो जिन चीजों को बात करते हैं कि कांग्रेस न अपने विश्वास पे खड़ी है, न कांग्रेस अपने साथियों के साथ खड़ी है, न कांग्रेस अपने लीडर्स के साथ खड़ी है, तो मतलब क्या होगा उस पार्टी का? इस डिनायल मोड में राहुल जी
अब बताइए, अमेठी से राहुल जी का कैंडिडेचर नहीं अनाउंस हो पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ी भारी सी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत अंत में बिल्कुल वो अनाउंसमेंट होगा। तो ये उनके वर्कर्स, उनके काडर, उनके बाकी लोग, उनके सपोर्टर्स, उनके सिंपैथाइजर को एनर्जाइज नहीं करता है। और दूसरी, अरविंदर सिंह लवली की जो बीच में एक खबर आई, चरणजीत सिंह सापरा, यहाँ पर आप आरोप ये लगा जरूर रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है और आखिर में इस तरह से कैंडिडेचर वापस हो जाता है और नॉर्थ कोरिया बन गया। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, इसके और भी एक चुनाव के बीचों बीच आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये तो लगता है वो नाराज हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है, किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो कहीं अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है कांग्रेस में, वो एक समस्या है इस वक्त। देखिए नगमा जी, दिल्ली वाला मामला जो है वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली वाले मामले को आप इंदौर के मामले से मिक्स करके नहीं देख सकते। इंदौर के मामले से मैं नहीं दिल्ली वाले मामले, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ कि कांग्रेस के खेमे में ये अच्छी खबर इस वक्त नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए भी नहीं। बिल्कुल, देखिए जब इंडिया गठबंधन बना है और जब कुछ पार्टियों जो हमारी पार्टी पहले विरोधी रही है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। उसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन होनी जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। दिल्ली का विषय अलग है और ये इंदौर वाला विषय और सूरत वाला विषय अलग है। इंदौर और सूरत वाला विषय क्या है पता, कि जो आजादी की जंग में भी जो बहादुर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए, जो डर जाते हैं ना वो संग में चले जाते हैं। अब अक्षय बम डर गया, वो फुसकी बम था तो डर गया, वो 307 का केस उसका निकाल दिया। और आपको डर नहीं, किस तरह के और भी बहुत लोग होंगे, तो उसके परिवार को खतरा हो गया। आपको डर नहीं है, आप कह रहे हैं वो डर गया, पर डर नहीं है कि इस तरह के हो सकता है और भी बहुत डरपोक लोग हो। तो आपके लिए तो ये बुरी खबर है ना कांग्रेस पार्टी के लिए। ये डर तो पूरे देश को है। ये सूरत और इंदौर तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अगर जो सूरत और इंदौर में हुआ है, अगर इनकी 400 सीटें आ गई, ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, अगर 400 सीटें आ गई तो खुलेआम ये नॉर्थ कोरिया बनने वाला है। फिर तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते हैं, तो ये 1 नेशन 0 इलेक्शन हो जाएगा या 1 नेशन नो इलेक्शन हो जाएगा। ये वही करेंगे। तो यही तो हम आज जनता की अदालत में जाकर के बता रहे हैं कि भाई अगर 400 सीटें आ गई इनकी, तो इस देश के अंदर ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, शिवम त्यागी, बचेगा। कई तरह के आरोप हैं। आपको मैं आपने सुना इनकी बात, सवाल के बजाय मैं आपसे ये जवाब चाहूंगी जो इन्होंने कहा है चरणजीत सिंह सापरा ने। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाएगा प्लीज बोलने के लिए। मैं एक ही चीज को बार बार रीएम्फसाइज करना चाहता हूं कि चरण सिंह सापरा जी, जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि हम वो डर गए, जो बम है वो पूसी बम निकले। भाई एक चीज बताइए, हम तो 2 सीटों से आए हैं। आजादी के बाद से अगर जनसंघ की बात करूं और फिर उसके बाद भाजपा की बात करूं और आज 2024 में, हम तो नहीं डरे। आप लोगों ने देश को जेल भी बना दिया, पूरे देश में लोगों को जेल में भी डाल दिया, कलाकारों को जेल में भी डाल दिया, सब कुछ किया, हम तो नहीं डरे। आज आप डरने की बात करते हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी डर जा रहे हैं, आपकी पार्टी के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी आप कह रहे हैं कि डर जा रहे हैं, आपकी पार्टियों में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे आपके समय में वो भी डर जा रहे हैं। सर कृपया करके जिन लोगों ने आपकी पार्टी में 3-3 जनरेशन तक सर्व किया हो, वो जुम्मा 4 दिन पहले जो पार्टियों में आए हैं और आकर कुछ बन गए हैं, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई का जो डर है, प्लीज अरे बीच में नहीं बोलना है। कौन बोलता है आपके बीच में? सापला जी कौन बोला आपके? चरणजीत जी एक बार आप उनको, शिवम त्यागी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वही शतुमुर्ग वाली बात है। आंख खोलकर मत देखो कि जो पायलट है वो बिल्कुल खराब है। आंख खोलकर मत देखो कि लोगों को अपना भविष्य नहीं नजर आ रहा है पार्टियों में। आंख खोल के मत देखो कि मात्र 10 साल आप ऑपोजिशन में अभी हैं और 10 साल में आपके साथ कोई रहने को तैयार नहीं है। अगर यही होता और यही सत्ता का लालच होता तो भारतीय जनता पार्टी जब सालों साल सत्ता में नहीं रही, जनसंघ जब सत्ता में नहीं रहा, बावजूद उसके लोग जुड़े ना विचारधारा है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, तो लोग छोड़कर जाएंगे ही। और जब तक कि अपने इस बात को देखिए, मेरे पास अब इतना वक्त है, आपने अपनी पूरी बात कही कि विचारधारा नहीं है, नियत और नीति नहीं है। चरणजीत सापरा, देखिए ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच बात यह है कि ईडी, आईटी, सीबीआई या और एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है या पुरजोर उपयोग जो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हेतु सेट करने के लिए कर रही है, वोटों की खेती के लिए कर रही है, ये सारी जनता के सामने है। इन्होंने जितने नाम लिए उसमें से 70% नाम ऐसे हैं जो ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से गए हुए हैं।
और उसमें से कितने लोगों के तो केस भी वापस हो गए, कितने लोगों के केस आपने जो है वो कहा छुट्टे बस्ते में हो IBCBI के डर से है, बीजेपी का कहना है कि आपके पास कोई दिया। नीति नहीं है, आपके पास कोई नियत नहीं है, आप इसके लिए लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन चुनावों के बीचों बीच ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरत और इंदौर की बात पर हम ये बात कर रहे थे कि क्या आगे भी और जगहों पर भी ऐसा हो सकता है और क्या बाकी कैंडिडेट्स भी अपना नाम वापस ले लेंगे। और कांग्रेस के खेमे के लिए एक बुरी खबर है जो आज इंदौर में भी हुआ। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और आगे आपको दिखाएंगे खबर अमेरिका से, जहां की यूनिवर्सिटीज में अब पैलेस्टाइन फिलिस्तीन के लिए जो समर्थन है वो जोर पकड़ रहा है, लेकिन साथ साथ जोर पकड़ रहा है स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो भी और उसका विरोध भी। एक ब्रेक के बाद अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन का नजरिया बहुत सख्त है। वहां अब तक 900 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडा फहरा दिया। इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिम्मेदार छात्रों पर एक्शन की बात कही है। इस पूरे विवाद पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। इजरायली समर्थक प्रदर्शनकारी जहां बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वहीं फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी गाजा की तबाही रोकने और तुरंत सीज फायर की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई भी हुई है। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक ऐसा काम किया है जिसे उकसावे वाला माना जा रहा है। इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के भीतर जॉन हॉवर्ड की प्रतिमा के पास उस जगह फिलिस्तीनी झंडा लगा दिया जो जगह अमेरिकी झंडा लगाने के लिए सुनिश्चित है। यह घटना शनिवार स्थानीय समय के हिसाब से शाम 6:30 बजे हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा चढ़ाते नजर आ रहे हैं। इससे यूनिवर्सिटी कैंपस में इजराइल समर्थकों और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा करने वाले छात्रों ने यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन किया है, उसकी नीति का उल्लंघन किया है। यूनिवर्सिटी हॉल के ऊपर लगाए गए फिलिस्तीनी झंडे को विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने हालांकि तुरंत उतार दिया और इसमें शामिल छात्रों की पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। दरअसल अमेरिका में कई जगहों पर इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है। खासतौर पर अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी कैंपसों में छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बिग एप्पल के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जारी प्रदर्शन भी शामिल हैं। इजराइल समर्थक और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में रविवार को झड़प भी हुई। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों गुटों को अलग करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने दोनों गुटों को अलग करने के लिए जो बैरिकेडिंग की थी, प्रदर्शनकारियों ने उसे तोड़ दिया और आपस में भिड़ गए। दोनों ही गुटों के बीच जमकर गुत्थम गुत्था हुई। विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ किए जाने की भी खबर सामने आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका में जारी प्रदर्शनों में 900 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को हालात से अवगत रखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को हालात से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिका में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और इस मद्देनजर राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ऐसे प्रदर्शनों से चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है।